Thank you, sir. GM sir will now honor Shri L. Murugan, Honorable Union Minister for State, INBC. I request General Manager to give a shawl and bouquet to Srimati Dr. Tamilisai Soundararajan, former Governor, Telangana. Sir, to honor Shri S.S. Shivashankar, Minister for Transport, Government of Tamil Nadu. Thank you very much, sir. We have 10 children waiting for our Honorable Governor to receive the prizes, who have won first prizes in the various competitions held in commemoration of the inaugural run of Vande Bharat. I now request our Honorable Governor, Shri R.N. Ravi, to kindly give away the certificates and the cash reward as an encouragement to the students. Anbalgi of class 12 from Shri R.K.M. Sharda Vidyalaya Matric High Secondary School. Aditi J of 11th standard from Sri Ramakrishna Mission Higher Secondary School, May. Naveen Kumar E of 10th standard from Ramakrishna Mission Metric Higher Secondary School. S. Ashwin of 12th standard from Sri Ramakrishna Mission Higher Secondary School, South. R. Sanjay of 7th standard from Sri R.K.M. Sharda Vidyalaya Middle School. R. Sanjana of 7th standard from Sri R.K.M. Sharda Vidyalaya Middle School. Kiran Raj N of 10th standard from Railway Balabhavan Metric Higher Secondary School. T.S. Kirtana of 7th standard from R.K.M. Sharda Vidyalaya Model Higher Secondary School. E. Sundaran Natarajan of class 12 from Hindu Higher Secondary School, Chitragate. S. Nitika Shri of 12th standard from Sri R.K.M. Sharda Vidyalaya Girls Higher Secondary School. A. Sainaba Tamana of 10th standard from Railway High Secondary School, CBSE, Peru. Thank you very much, sir, for your encouragement and appreciation to the school children. Mere getting of prize from your hand itself would have been an encouragement to the children. Added to that were your words of wishes. May I now request Shri L. Murugan, Honorable Union Minister of State for INB, to kindly give us his words of wishes and blessings. மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர், மரியாதைக்குரிய
திரு ஆர்.என். ரவிஜி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழகத்தினுடைய போக்குவரத்துறை அமைச்சர் திரு சிவசங்கர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய முன்னாள் தெலுங்கானா பாண்டிச்சேரியினுடைய ஆளுநர் திருமதி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன்ஜி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு ஆர்.என். சிங் ஜெனரல் மேனேஜர் சதர்ன் ரயில்வே அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு விஸ்வநாத் டிஆர்எம் சென்னை அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பெரியோர்களே, சான்றோர்களே, ஊடக சகோதரர்களே, ரயில்வே சார்ந்த அமைச்சர்களே, அலுவலர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, ரயில்வே துறையில கடந்த 10 ஆண்டுகள்ல மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய தலைமையில ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று புரட்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது. ரயில்வே துறையில மட்டுமே இன்றைக்கு மிக அதிநவீன ரயில் போக்குவரத்தை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். முன்னாடியெல்லாம் புல்லட் ட்ரெயின் நம்ம பேப்பர்ல தான் படிப்போம் அல்லது சினிமாவில் பார்த்துட்டு இருப்போம். ஆனா இன்றைக்கு நம்மளுடைய இந்தியாவில் நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய முயற்சியில இன்றைக்கு மும்பைக்கும் அகமதாபாத்துக்கும் இடையில புல்லட் ட்ரெயின் ஆனது வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கூடி சீக்கிரம் நாம் புல்லட் ட்ரெயின்ல போவோம். அதே போல வந்தே பாரத் ரயில்கள், ஆத்ம நிர்பர் பாரத்ல சொந்த நாட்டுல நம்மளுடைய சொந்த முயற்சியில நம்மளுடைய சொந்த தொழில்நுட்பத்துல நம்மளுடைய குறிப்பாக சொல்லணும்னா நம்மளுடைய சென்னை ஐசிஎஃப்ல தயாரிக்கப்பட்ட இந்த வந்தே பாரத் ரயில்கள் இந்தியா முழுவதும் பயணிப்பதோடு வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது என்பது நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய முயற்சியால தான். ஏற்கனவே சென்னைக்கும் திருநெல்வேலிக்கும் இடையில இருந்த வந்தே பாரத் ரயில் இன்றைக்கு சென்னைக்கும் நாகர்கோயிலுக்கும் புதிதாக ஒரு சேவை தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல இன்றைக்கு மதுரைக்கும் பெங்களூருக்கும் ஒரு சேவை தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே சென்னையிலிருந்து மைசூர், பெங்களூர் வழியாக மைசூருக்கு ஒரு சேவையானது இருக்கிறது. ஏற்கனவே சென்னை டு கோயம்புத்தூருக்கு வந்தே பாரத் ரயில் இருக்கிறது. சென்னையிலிருந்து திருப்பதி வழியாக விஜயவாடாக்கு வந்தே பாரத் ரயில் இருக்கிறது. இப்படி சென்னை மையமாக வைத்து மட்டுமே இன்றைக்கு வந்தே பாரத் ரயில்களுடைய எண்ணிக்கை என வந்தே பாரத் ரயில்கள் மிக வேகமாகவும் மக்கள், மாணவர்கள், மக்கள், வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் அனைவரும் பயன்பெறும் விதமாக என காலையில இங்கிருந்து கிளம்புனா மதியத்துக்கு கோயம்புத்தூர் போயிடலாம். அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர்ல கிளம்புனா நைட் இங்க வந்துடலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு மிக அதிநவீன வசதிகளோடு சிறந்த ரயில்களை, வந்தே பாரத் ரயில்களை நாம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி. அதே போல இந்த நேரத்தில் நாம் ரயில்வே அமைச்சர் திரு அஸ்வின் வைஷ்ணவ்ஜி அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லவும். ஏன்னா ரயில்வே, தமிழ்நாட்டினுடைய ரயில்வேனுடைய நிகழ்ச்சிகளாகட்டும், ரயில் ப்ராஜெக்டுகளாகட்டும், எது அவரிடத்தில் சென்றாலும் கூட உடனடியாக தமிழ்நாட்டிற்கு ஒப்புதல் கொடுத்து அதை ஒப்புதல் கொடுப்பது நம்முடைய ரயில்வே துறை அமைச்சர் திரு வைஷ்ணவ்ஜி அவர்கள். கடந்த பட்ஜெட்ல மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 6000 கோடி ரூபாய் தமிழகத்திற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த பட்ஜெட்ல கிட்டத்தட்ட 6000 கோடி ரூபாய் ரயில்வேக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 9 புதிய ரயில் பாதைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் 75 அமிர்த் பாரத் ரயில் நிலையங்கள், அதேபோல சென்னை எக்மோர்ல கிட்டத்தட்ட 800 கோடி ரூபாய் செலவுல ரயில் நிலையமானது மிக சர்வதேச தரத்தில் விமான நிலையம் போல் ரயில் நிலையம் இருக்கிறது. கன்னியாகுமரி ரயில் நிலையம், ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையம், சேலம் ரயில் நிலையம், மதுரை ரயில் நிலையம், இது எல்லாமே சர்வதேச தரத்தில் அமிர்த் பாரத் திட்டத்தின் கீழ ஒரு மிகப்பெரிய நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் ரயில் நிலையங்களாக இந்த ரயில் நிலையங்கள் மேம்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு ரயில்வேனுடைய வளர்ச்சி மிக அபரிதமான வளர்ச்சியை நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய சிறந்த 3வது முறை நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் தொடர்ந்து ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார்கள். ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆட்சி. அந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த 3வது ஆட்சியில மும்மடங்கு தமிழகத்தினுடைய ரயில்வே ப்ராஜெக்டுகளை, ரயில்வே திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதுதான் ரயில்வே துறையினுடைய செயல்பாடாக இருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் இன்றைக்கு இங்கே தொடங்க இருக்கின்ற சென்னை நாகர்கோயில் வந்தே பாரத் ரயில், அதே போல மதுரை பெங்களூர் வந்தே பாரத் ரயில்,
தமிழகத்திற்கு கொடுத்த மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய திரு அஸ்வின் வைஷ்ணவ்ஜி அவர்களுக்கும், ரயில்வே துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த நிகழ்ச்சியில நமக்கு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு தமிழகத்தினுடைய ஆளுநர் திரு RN ரவிஜி அவர்களுக்கும், தமிழகத்தினுடைய அமைச்சர் அவர்களுக்கும், நம்முடைய முன்னாள் கவர்னர் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். அருமையான வாழ்த்துரைக்கு மிக்க நன்றி. Next, I would like to invite our Honorable Governor of Tamil Nadu, Shri RN Ravi, to bless us on this occasion and give his words of wishes, please. Respected Dr. L. Murugan, Union Minister, Tirumati Tamilisai Soundarajan, former Governor Telangana and Lieutenant Governor of Pondicherry, Thiru S.S. Sivasankar, Honorable Minister for Transport, Government of Tamil Nadu, former Minister Pon Radhakrishnan Ji, Thiru R.N. Singh, General Manager, Thiru Vishwanath, Era Divisional Manager, Chennai Division. My dear friends, my dear brothers and sisters of Tamil Nadu, Anaivarkum Vanakkam. It's a very happy day for all of us from Tamil Nadu. Today, of the 3 Vande Bharat being launched, 2 are gifted to us. And this takes the number of Vande Bharat to our estate, I think 6 or 7, maybe the highest in any estate. And for this, I like to thank the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, in whose heart Tamil Nadu lives. நமது பிரதமர் அவர்களின் இதயத்தில் தமிழ் மக்கள், தமிழ் மொழி, தமிழ் கலாச்சாரம் வாழ்கிறது. And this is just one example. There have been many. Our Prime Minister, he has been taking Tamil culture, Tamil language to the world stage. We know. He has taken Tamil to United Nations. There is hardly a visit, an occasion where Modi ji does not mention about Tamil Nadu or the wisdom of Tamil Nadu. We all know that for promoting the Tamil language, he has established a Subramania Bharati chair in BHU, the first time outside Tamil Nadu. And recently, he established a chair, Tiruvalluvar chair in University of Malaysia. We all know that India is the mother of democracy. And whenever Prime Minister mentions that, he doesn't forget to mention our Uttar Meru. Uttar Meru, just about 1 hour drive from here. On the stone inscriptions, you see the beautiful democratic model of governance. This place, people of this place, the language and culture are the pride of India. Friends, this Vande Bharat being launched, the 2 of them launched today, these are all laying the foundation of a Vikshit Bharat, a developed India. It's not just random. These are all part
of a project laying foundation to develop this country into a self-reliant country, a fully developed country by 2047. We know that our Vande Bharat is a world-class railways. In fact, I have visitors, guests coming from United States of America and Europe. When they come and visit Vande Bharat, they report that the praise that they have for it. This is just incredible. They find it difficult to believe that in this country, our reputation was so bad, so poor. This country is world class. We don't have such trains, such facilities in Europe and United States of America. For a very long time, our country has been a country which world did not take note of. We know that at the time of independence, we were the 6th largest economy. By 2014, thanks to our previous people, we became the 11th largest. We dipped down. And in last 10 years, we have become the 5th largest economy in the world. And the world knows that in the next few years, we are going to be number 3. This is the growth of New India. This is the birth of New India, confident New India, resolute New India, with world-class futuristic infrastructure. And you know the contribution of railways. When it comes to Tamil Nadu, we have to admit the fact that whatever capital expenditure happens in this state, whether by road, by rail, by port, by airport, it is the central government money. It is the government of India which funds all this project. Because here we have hardly any money to spend on this. We just fritter away the money in giving in this kind of that and that freebies. So the people of Tamil Nadu, the potential of Tamil Nadu is so precious to the country that for the growth of the country, Tamil Nadu has to grow. And here, our Prime Minister has been at the forefront in providing the powerful engine of growth. And I'm sure today's event is a very wonderful contribution to it in our journey towards a prosperous Tamil Nadu, a prosperous Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, sir. We'll be joining in few seconds through the VC link to our Honorable Prime Minister. I request all the souvenir ticket holders to kindly board the train because the doors will be closing. I request all the souvenir ticket holders to kindly board the train. The doors are closing. उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी एवं दिनेश पटेल जी, सांसद अरुण गोविंद जी एवं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तिगण, चेन्नई से हैं तमिलनाडु के राज्यपाल माननीय R.N. रवि जी, तमिलनाडु के सूचना एवं प्रसारण केंद्रीय राज्य मंत्री L. मुरुगन जी तथा माननीय परिवहन मंत्री तमिलनाडु सरकार S.S. शिवशंकर जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तिगण, मदुरई से हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना जी, माननीय सांसद S. वेंकटेश्वरन जी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तिगण। इसके साथ ही हमारे रेल परिवार के सदस्यगण, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि एवं आप सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पूरे विश्व में नए और आधुनिक भारत की पहचान बन चुकी वंदे भारत ट्रेन आज
हर भारतीय का गर्व है। देश भर में फिलहाल 102 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में चलने वाली 3 और वंदे भारत ट्रेनें यानी 6 वंदे भारत सेवाएं और जुड़ने जा रहे हैं। आज 3 जिन वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया जा रहा है उनमें मेरठ सिटी को राजधानी लखनऊ से, टेम्पल सिटी मदुरई को IT सिटी बेंगलुरु से और चेन्नई को नागरकोइल से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। और इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की संख्या 10 जोड़ी, कर्नाटक में 9 जोड़ी और तमिलनाडु में 8 जोड़ी हो जाएंगी। ये वंदे भारत ट्रेन आरामदायक सीट, बेहतर लाइटिंग, GPS आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रत्येक सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, स्वचालित दरवाजे, इमरजेंसी टॉप बैक यूनिट जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त है। प्रगतिशील आत्मनिर्भर भारत के विचार और आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए नई तकनीकी के इस्तेमाल से बदलाव के नए मोर्चे पर भारतीय रेल सदैव अग्रणी रहा है। हमारे दूरदर्शी माननीय प्रधानमंत्री जी का यह मानना है कि आज के नई प्रौद्योगिकी के इस युग में उन्नत परिवहन से देश का कायाकल्प होना अवश्यंभावी है। इसके लिए रेलवे ने एक मजबूत, विश्वसनीय, तेज, कुशल, समयनिष्ठ, जवाबदेह और अखिल भारतीय नेटवर्क के निर्माण की ओर देखना शुरू किया और इसको वास्तविकता में बदलने के लिए तथा भारतीय रेल को विश्व स्तरीय बनाने के लिए मेड इन इंडिया के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण शुरू किया गया और बहुत ही कम समय में यह ट्रेन आज आत्मनिर्भर भारत का श्रेष्ठ उदाहरण बन चुकी है। इस प्रकार आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय रेल अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प को प्रदर्शित कर रही है और यह सब कुछ संभव हो पा रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण। कुछ ही देर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। யாரோடது? कृपया यहाँ सभी अपने मोबाइल हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है।
है। नमस्कार। नमस्कार, सुस्वागतम। अपने दूरदर्शी एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण से भारत में विश्व पटल पर अग्रणी देशों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा विकसित भारत के निर्माण का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में देश में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन चुकी 3 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का आज शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मेरठ, चेन्नई और मदुरई से जुड़े सभी साथी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म में एक साथ 3 वंदे भारत के शुभारंभ समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा पीरियड आता है जब भविष्य की नींव रखी जाती है, जब सपने पूरे होने लगते हैं और उसे विश्व में नई पहचान मिलती है। और ऐसा तभी संभव होता है
जब राष्ट्र का नेतृत्व विजनरी हो, डिसाइसिव हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो। देश ने तीसरी बार ऐसे नेतृत्व को चुना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। डिसाइसिव, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग, कठिन से कठिन फैसले लेने वाले और अपने जीवन का पल पल राष्ट्र को समर्पित करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी। जीवन के हर क्षेत्र में इस लीडरशिप का प्रभाव दिखाई दे रहा है। रेलवे का ही उदाहरण लीजिए। आजादी के बाद रेलवे में टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की भारी कमी रही, दशकों तक बदलाव नहीं आया। रेलवे एक टेक्निकल संस्था, लेकिन इसे पॉलिटिसाइज कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें वृहद बदलाव किए, इन्वेस्टमेंट को 10 गुना बढ़ाया, नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित किया और सबसे बड़ी बात, माइंडसेट बदला। इन 10 वर्षों में रेलवे नेटवर्क में 31,180 किलोमीटर नए ट्रैक जुड़े। समृद्ध फ्रांस देश, उनका पूरा रेलवे नेटवर्क, उससे अधिक इन 10 वर्षों में मोदी जी ने भारत में नए ट्रैक जोड़े। आज हर प्रतिदिन 14 किलोमीटर नए ट्रैक रेलवे के नेटवर्क में जुड़ रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, आजादी से 2014 तक केवल 21,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ था। 60 साल में 20,000 किलोमीटर और 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन। वैसे ही नई टेक्नोलॉजी की वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन और अभी वंदे मेट्रो का ट्रायल चल रहा है और कुछ ही दिनों में वंदे स्लीपर का ट्रायल भी आरंभ हो जाएगा। कश्मीर का रेलवे नेटवर्क भी तैयार हो रहा है। केवल एक टनल में जो T1 है उसमें काम अभी शेष है, काम चल रहा है। सभी कठिनाइयों को पार करते हुए देश भर में मोदी जी के इस विजनरी लीडरशिप में हर प्रोजेक्ट में तेजी से काम चल। देश भर में 1,326 स्टेशन का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कवच जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी देश में डेवलप की गई। अभी हाल ही जुलाई में ये कंप्लीट हुआ इसका डेवलपमेंट और अब मिशन मोड में देश भर में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया है कि हम सब 3 गुना मेहनत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल परिवार के 12 लाख सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी देश की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जी जान लगा देंगे। आपने तो रेलवे को जिया है, आपका रेलवे के साथ इमोशनल कनेक्ट है। आपके इस सदैव अनवरत मार्गदर्शन के लिए आपका आभार। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में स्पीड और कनेक्टिविटी के एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। आज संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देशवासियों को सुखद, सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएंगी। आइए नजर डालते हैं नए और आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक बन चुकी वंदे भारत ट्रेन की एक लघु फिल्म पर। कृपया ध्यान दीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। वंदे भारत ट्रेन यानी आत्मनिर्भर और विकसित होते भारत की पहचान। वंदे भारत ट्रेन यानी तेज और आरामदायक सफर का माध्यम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेज गति से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। आधुनिक होते भारत की इस पहचान को सशक्त कर रही है स्वदेशी तकनीक एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वंदे भारत में गति भी है, वंदे भारत में आधुनिकता भी है और वंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है। दुनिया में भारत की प्रगति और मंत्री जी आज एक साथ 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेनें मेरठ सिटी को राजधानी लखनऊ से, टेम्पल सिटी मदुरई को IT सिटी बेंगलुरु से और चेन्नई को नागरकोविल से जोड़ेंगी। वंदे भारत ट्रेनें वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है। आरामदायक सीट, बेहतर लाइटिंग, GPS आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम,
प्रत्येक सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, स्वचालित दरवाजे, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट जैसी सुविधाएं इस ट्रेन में हैं। दिव्यांग जनों के लिए वंदे भारत ट्रेन में ब्रेल लिपि से युक्त सीट हैंडल और टच फ्री टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 10, कर्नाटक में 9 और तमिलनाडु में 8 हो जाएगी। अब इन राज्यों के निवासियों को न केवल तेज, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा, बल्कि पर्यटन एवं आर्थिक सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों को विशेष लाभ होगा। वर्तमान में देश के 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इन ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो 280 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। देशवासियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय वंदे भारत ट्रेनें 35,000 से अधिक ट्रिप लगा चुकी हैं और इनमें अब तक 3 करोड़ से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। उच्च गति, उन्नत सुरक्षा मानक और विश्व स्तरीय सेवा की मिसाल मेक इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें आज बन चुकी हैं नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग की प्रतीक। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस अभूतपूर्व अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, राज्यों के डिप्टी सीएम, मंत्रीगण, सांसदगण, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल, मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली। टेम्पल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरई और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा।
जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। इन ट्रेनों के लिए देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण के राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत में अपार प्रतिभा है, अपार संसाधन और अपार अवसर की भूमि है। इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटक समेत पूरे दक्षिण का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीते 10 वर्षों में इन राज्यों में रेलवे की विकास यात्रा इसका उदाहरण है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज वंदे भारत ट्रेनों की 8 जोड़ियां पूरे कर्नाटका को जोड़ रही है। साथियों, पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बजट में तमिलनाडु, कर्नाटका समेत दक्षिण भारत के राज्यों में रेल यातायात को और मजबूत किया है। इन राज्यों में रेलवे ट्रैक्स बेहतर हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। इससे लोगों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मदद मिली है। साथियों, आज मेरठ लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के वहां के लोगों की भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज ये क्षेत्र विकास की नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। मेरठ एक और RRTS के जरिए राजधानी दिल्ली से जुड़ रहा है। दूसरी ओर इस वंदे भारत से प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी भी कम हो गई। आधुनिक ट्रेनें, एक्सप्रेस वेज का नेटवर्क, हवाई सेवाओं का विस्तार, पीएम गति शक्ति का विजन कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेगा, एनसीआर इसका उदाहरण बन रहा है। साथियों, वंदे भारत
आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वो वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। ये संख्या वंदे भारत ट्रेनों की सफलता का सबूत तो है ही, ये आकांक्षी भारत की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक भी है। साथियों, आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत के विजन का एक मजबूत स्तंभ है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। इस साल के बजट में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बजट रेलवे को दिया गया है। हम भारतीय रेल को उसकी पुरानी छवि से निकालने के लिए उसे हाईटेक सेवाओं से जोड़ रहे हैं। आज वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत ट्रेनों का भी विस्तार हो रहा है। बहुत जल्द वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी आने वाला है। महानगरों में लोगों को उनकी सुविधा के लिए नमो भारत ट्रेन चलाई जा रही है और शहरों के भीतर ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए जल्द ही वंदे मेट्रो भी शुरू होने जा रही है। साथियों, हमारे शहरों की पहचान उसके रेलवे स्टेशनों से होती रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना से स्टेशन भी संवर रहे, शहरों को नई पहचान भी मिल रही है। आज देश के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को रिनोवेट किया जा रहा है। आज देश में जगह जगह एयरपोर्ट की तरह ही रेलवे स्टेशन भी बन रहे हैं। छोटे से छोटे स्टेशनों को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी बढ़ रहा है। साथियों, जब रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज जैसे कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होते हैं तो देश सशक्त होता है। इससे देश के सामान्य नागरिक को लाभ होता है, देश के गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होता है। आज देश देख रहा है कि जैसे जैसे भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, गरीबों और मध्यम वर्ग सशक्त हो रहा है, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से गांवों में भी नए अवसर पहुंचने लगे हैं। सस्ते डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी गांव में नई संभावनाएं बन रही है। जब अस्पताल, शौचालय
और रिकॉर्ड संख्या में पक्के मकानों का निर्माण होता है तो सबसे गरीब को भी देश के विकास का लाभ मिलता है। जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं तो इससे नौजवानों की प्रगति की संभावना भी बढ़ती है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ सके। साथियों, बीते वर्षों में रेलवे ने अपनी मेहनत से दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाई है, लेकिन अभी हमें इस दिशा में बहुत लंबा सफर तय करना है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारतीय रेल गरीब, मध्यम वर्ग सभी के लिए सुखद यात्रा की गारंटी नहीं बन जाती। मुझे विश्वास है देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का ये विकास गरीबी को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं एक बार फिर तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के लोगों को 3 नई वंदे भारत के लिए बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हूँ कि वे 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के निवासियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनों की सौगात दें।
Jai Hind. Choro